जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में मैं इस वक्त खड़ा हूं। सुबह एक कॉल आती है और बताया जाता है कि पिछली रात से गाड़ियां रोकी गई हैं और वो गाड़ियां ईंट वाली गाड़ियां हैं। ये ठीक दो बड़े वाहन, दो बड़े ट्रक जो ईंट से भरे हुए हैं वो लखनपुर में रोके गए हैं, लेकिन स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। क्यों रोके हैं, किस लिए रोके हैं, किसने रुकवाए हैं और क्या कारण है जो इन्हें रोक दिया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब की ईंट जो है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर ईंट जो है वो बिकती है। लंबे समय से ये कहानी चल रही थी, आज तक किसी ने नहीं रोकी, किसी ने नहीं पूछा। तो आज हम लखनपुर में हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों इसे रोका गया है। अगर रोकी जानी थी तो आज तक सारी ईंट की गाड़ियां रोकते। इस वक्त हमारे साथ सांबा से आए हुए व्यक्ति हैं जिनका ये पूरा माल है, जिन्होंने ईंट जो है वो मंगवाई है। सर क्या नाम है थोड़ा पूरा मसला? मेरा नाम विजय चौधरी है। हाँ जी। और ये घोड़े अं पक्के बिल पे मंगवाए। हर गड्डी साडी पक्के बिल पे आती है। अंडरलोड माल है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। 3-4 ਦਿਨ ਹਰਾਸਮੈਂਟ। ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ। ਤੇ ਐਮਬੀਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਈਆਂ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ? ਰੁਕਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੁਕਾਈਆਂ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਲਵਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਈਆਂ ਨੇ। लेकिन ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਆਏ, ਨਿਊਜ਼ ਲੋ ਆਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ। क्या रात ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟ ਵਾਲੀਆਂ? ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੇ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਟ ਵੇਚਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। क्या ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ मतलब ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਗਈ ਹੈ, क्या ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ? ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲੱਭੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਕੁਦਰੂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰ ਵਿਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਬਿਲ ਤੇ ਮਾਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲੇ ਦੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲੈ ਲਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਖੜੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਏ। ਕਾਗਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ? ਵਜਨ ਅੰਡਰਲੋਡ ਮਾਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਅੰਡਰਲੋਡ ਨੇ। ਅੰਡਰਲੋਡ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਲੋਡ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕੇ ਦਾ? ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਰੋਕੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ? ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਆ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਉੱਪਰ? ਐਜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ सांबे ਤੋਂ आए। सांबे से ये यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि आज तक भी ईंटें आती रही, आज तक भी ईंटें आती हैं, लेकिन क्या कारण है जो रात को रोक दिया गया? मान लिया जाए कि अगर आपके कागज़ पूरे नहीं हैं तो जुर्माना बनता है। मान लिया जाए अगर इस वाहन के, इस गाड़ी के कागज़ पूरे नहीं हैं, जुर्माना बनता है। माल ओवरलोड है, जुर्माना बनता है। कुछ कमी है जो रूल्स रेगुलेशंस के अंडर आएगी, उसके मुताबिक कोई परेशानी है तो उसका हल है। लेकिन रोकी क्यों गई हैं गाड़ियां, वो कारण इन्हें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और साथी को बुलाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम कपिल सिंगला है। कपिल जी हाँ जी। कितों आए हो माल लगे? ये माल लेके नहीं आया, हमारा तो डंप है। अच्छा तो डंप है। हाँ जी, उन्हें माल ये पंजाब से ही आया? पंजाब से आया जी, पंजाब तो आया। पंजाब से आया है। कितनी देर हो गई माल आंदे जांदे या माल माल लेंदे आते नूं? तो मेरे को 4 साल हो गए काम करते हुए। 4 साल से परमानेंट माल आ रहा था। ते गड्डियां पहली बार रुकी हैं? गड्डी पहली बार रुकी है, एक बार पहले रुकी थी 2 साल पहले, जब हमने केस लगाया कोर्ट में, और जब हमें ऑर्डर मिल गया अभी आप बेचो माल, क्योंकि जीएसटी में माल आता है। जीएसटी का माल कहीं भी लाके कहीं भी कोई बंदा काम कर सकता है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ जीएसटी ਦਾ? सारा माल जीएसटी का है। ਕਿੰਨਾ % जीएसटी ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ? 6% है जी। ਅੱਛਾ 6% ਦਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਅੱਛਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਆਏ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਲੇ ਰੋਕਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ? हमारे ड्राइवरों को बताया गया कि जो है पहले तो बिल चेक करें उन्होंने, सेल टैक्स वालों ने। सेल टैक्स वालों का जीएसटी वाला बिल क्लियर है, तो पुलिस वालों ने यहाँ 2-3-4 बंदे थे, पुलिस के जिप्सी खड़ी थी, उन्होंने ड्राइवरों को बोला भी हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, भी हम ऊपर से मतलब? भी SHO का साहब का ऑर्डर है, हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर हमने SHO साहब का नंबर लेके SHO साहब को रात को 1:30 बजे फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन भी उठाया 1:30 बजे। उन्होंने बोला मैंने किसी तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, गाड़ी आपकी नहीं रुकी है। और 5 मिनट बाद इधर फ़ोन आ जाता है ड्राइवरों के सामने ही, पुलिस वालों के पास जो भी है, गाड़ी कोई ईंट वाली नहीं छोड़नी है। अब सुबह सुबह हम आए हैं, फोन किसका आता है? फ़ोन SHO साहब का ही आता है, गाड़ी नहीं छोड़नी? गाड़ी नहीं छोड़नी है। उसके बाद हमने फ़ोन किए, 3-4 नंबरों से अलग अलग फ़ोन किए, SHO साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। आज सुबह भी फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए हमें यहाँ परेशानी हुई, यहाँ आना पड़ा। और हमारे ड्राइवरों को बार बार फ़ोन कर रहे थे, हमें ड्राइवरों का साथ देना पड़ा। इसलिए मसला ये नहीं है कि ईंट कहाँ से आई है, मसला है कि अगर पूरा लीगल वे में है, जीएसटी बिल है, कानूनी दस्तावेज पूरे हैं, ई वे बिल है, ट्रांसपोर्टेशन बिल है, यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर, जो भी गाइडलाइंस के अंडर आता है, अगर वो सब पूरा है तो फिर इन्हें क्यों रोका गया है? क्या कारण है? क्या एक दिन में कानून बदल गए? क्या एक दिन में रूल्स बदल गए? जो कल रुकवा सकते हैं वो पिछले 6 महीने से भी रुकवा सकते थे। क्या कारण है? ये कारण हम भी उच्च अधिकारियों से जरूर पूछेंगे कि किस आदेश के आधार पर गाड़ियों को रोका गया। क्या इनकी जांच में कुछ इलीगल पाया गया है? क्या इनकी जांच में कुछ वायलेशंस हुई हैं? अगर वायलेशंस हुई हैं, जुर्माना कीजिए, फाइन कीजिए, भेज दीजिए। लेकिन अगर वो कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी रोका है, तो ये किसके कहने पर रोका है? जनता जरूर राय दे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, आखिर क्यों समय समय पर कानूनों को अपने अनुसार, अपने अनुकूल बदल दिया जाता है। क्या कोई पूछने वाला नहीं है, या फिर मनमर्जी के सौदे चल रहे हैं? बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर होंगे। आप देखते रहें रियासतनामा।